Very good morning. So today we will start the new chapter, that is ruling the countryside. In the previous chapter, we had already covered the ways in which the company it had expanded its rule. The ways in which it had expanded its rule. Now, once they had enough expanded, by following the various policies like paramountcy or by the policy of subsidiary lines or the doctrine of lapse and so on. Now, they had to take few steps so as to control the administration, right? To control the administration. क्योंकि इस time तक अब जो company थी, they have already got the right of Diwani in Bengal. And we had already covered that with getting the right to Diwani, this had been proved to be a very beneficial to the company. How that now the company could have its own expenses on this Diwani or the revenue that had been collected from Bengal. अपने सारे खर्चे जो थे वो यहाँ से पूरे कर सकते थे. They could fortify, they could have their army, they could have their own expenses here. So it was much beneficial for the company, right? यहाँ पर आपकी एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें कि इस इवेंट को, इवेंट मीन्स इवेंट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ दिवानी or right of Diwani to the company. Here you can see in the picture that it has been portrayed as a very grand, you can say, event. But actually it is mentioned that it had not been like this. ये एक simple formal एक document था जो कि exchange किया गया था, right? लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने पेंटर को कह के ऐसी पेंटिंग बनवाई थी जिसमें कि बहुत ही बड़ा lavish था. ये एक इवेंट जो था वो दिखाई दे रहा है, right? Now as the Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory. This you need to underline. The company became the chief financial administrator of the territory under its control, right? अब it means कि उस एरिया का जितना भी फाइनेंशियल काम था, पैसे रिलेटेड जो भी काम था, वो सारा का सारा अब कंपनी के अंडर आ गया था, right? It had to think of administering the land and organizing its revenue sources. अब ये जो कंपनी थी, अब उन्हें क्या सोचना था कि अब हमने एरिया तो एक्सपेंड कर लिया, हमने राइट ऑफ दिवानी को ले लिया, अब हम इससे रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे इकट्ठा करें. Now that was the main motive of the company, so that they could yield more and more revenue, more and more profit. Reason क्या था कि though they had got the right to Diwani, but still basically तो ये traders ही थे ना. Basically जो थे ये कोई rulers नहीं थे, ये कोई administrator नहीं थे. Basically they were the traders. So they were having this motive to gain more and more benefit or profit, right? So trading company had to ensure that it could buy the products if needed and sell what it wanted. Means अभी भी इनका main motive था कि अभी भी यहाँ से सस्ते दाम पे सामान ले लिया जाए और उसको महंगे दामों पर बेच दिया जाए. और सेकंड क्या था कि ब्रिटेन से चीजें सस्ते दामों पर लेकर इंडिया में उसे हाई प्राइस पर बेच देना, राइट? अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, दे यूज्ड टू बाय द कॉटन फ्रॉम इंडिया एट वेरी लेस प्राइस एंड यूज्ड टू सेल इट देयर इन इंग्लैंड. फ्रॉम देयर दे यूज्ड टू मेक द क्लॉथ मेड, यूज्ड टू बाय द क्लॉथ एट less rate, at cheaper rate, and used to sell that in our country at a higher rate. तो दोनों तरफ से ही जो कंपनी थी बहुत ज्यादा बेनिफिट में थी कि इंडिया से सस्ती कॉटन ले ली, इंग्लैंड में बेची, इंग्लैंड में कपड़ा तैयार करवाया, वहां से सस्ते रेट पर खरीदा और वो कपड़ा यहाँ पर महंगे रेट पर बेच दिया.
डुअल प्रॉफिट इनको होता था, राइट। एक तो ये पर्पस था कि ये अपना बिजनेस जो था दोबारा अच्छे से सेट कर पाते, प्रॉफिट गेन कर पाते। सेकेंडली, दे वर द एलियन पावर। एलियन पावर क्या थी? ये अब यहाँ के लोकल रूलर तो थे नहीं, राइट। वी ऑल्सो नो कि ये लोकल रूलर नहीं थे, दे वर द फॉरेनर्स। सी, एलियन जो होता है, हम वर्ड यूज करते हैं, एलियन जरूरी नहीं है जो मार्स में रहते हैं वही एलियन है। वट एवर थिंग or a person or land or country or culture that is not known to us is an alien. अब अगर हम बाहर चले जाएं अमेरिका में, तो अमेरिकन कल्चर हमारे लिए क्या हो जाएगा? एलियन कल्चर हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट। जो भी चीज हमें नहीं पता है वो हमारे लिए एलियन है, राइट। और हम लोग क्या सोचते हैं, एलियन क्या होते हैं भी जो मार्स में रहते हैं? ऐसा नहीं है। whatever thing is not known to us, that is alien to us, right? अब ये जो कंपनी थी, that was an alien one, and being an alien power, वो फॉरेनर थे, उन्हें इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था। उनका अब मेन पर्पस क्या था कि if they want to enjoy the authority, they had to control the local people, right? कि जो लोकल लोग हैं उनको ये थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, तभी ये फर्दर यहाँ पर लोगों को रूल कर पाएंगे। दैट वाज देयर मेन मोटिव कि एंजॉय करनी है अथॉरिटी तो लोगों को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। सो हाउ दे डिड इट? इन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा जो था वो कैसे लोगों से लिया, कैसे लोगों को इन्होंने कंट्रोल किया? इन्होंने जो कंट्रोल कैसे किया? दे एक्सप्लॉइटेड। इन्होंने कोई बहुत प्यार से लोगों को कंट्रोल नहीं किया, इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करके ही लोगों को कंट्रोल किया, राइट। हाउ इट वाज डन? रेवेन्यू जो था अब कंपनी को आना शुरू हो गया था, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी गॉट द राइट टू दीवानी, या हम कह सकते हैं ये दीवान बन चुके थे बंगाल के। बट एज आई सेड कि although they had become the diwan, but still basically they were the traders. बेसिकली तो वो ट्रेडर्स ही थे। सो दे वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम, बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट, कि हम कोई बहुत ज्यादा टेंशन ना ले, हमें बैठे बैठाए पैसा आता रहे, राइट। उसके लिए भी इन्होंने क्या किया? फर्स्टली दे इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच as it could and buy fine cotton and cloth silk as cheaply as possible. रेवेन्यू जितना बढ़ा सकते थे उतना बढ़ाया, और कॉटन और सिल्क जितने कम रेट पर खरीद सकते थे इंडिया से उन्होंने खरीदा। लेकिन जो चीज वो यहां पर बेचते थे उसके रेट बहुत ज्यादा डबल हो गए थे, राइट। एंड व्हाट हैपेंड कि पहले क्या करते थे ये लोग, जब इंडिया से इन्होंने सामान खरीदना होता था तो ब्रिटेन से गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट करते थे और सारा एक्सचेंज गोल्ड और सिल्वर में होता था। बट आफ्टर दे गॉट द राइट टू ऑफ दीवानी इन बंगाल, नाउ दे वर एबल टू यूज द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल टू परचेज द आइटम और टू कैरी ऑन देयर ट्रेड, राइट। इतना ज्यादा रेवेन्यू जो था ये खुद ही कलेक्ट करे जा रहे थे, तो बंगाल के हालात क्या हो गए थे कि द फाइनेंशियल कंडीशन वाज गेटिंग एग्जॉस्टेड, क्योंकि अब जो ब्रिटिश सामान था वो ही ज्यादा बिकता था। जो इंडिया के आर्टिजन्स थे जो हाथ से काम करते थे उनका सामान नहीं बिकने लगा। क्यों? क्योंकि ये हाथ से बनाया जो सामान था वो महंगा होता था, वेयरएज जो ब्रिटेन से सामान आता था वो मशीन मेड होता था, वो सस्ता पड़ता था। तो the people had also started demanding for the goods that were made by the company or that were sold by the company. धीरे धीरे क्या हुआ, जो आर्टिजन्स थे या जो छोटे छोटे बेचारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलाते थे, हाथ से कपड़ा बनाते थे, they were forced to sell their goods to the company at very less prices. तो ये जो छोटे छोटे बेचारे पुअर आप कह सकते हैं कपड़ा बनाने वाले थे, their production was in decline.
धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी कम होता चला गया. मीन टाइम व्हाट हैपेंड दैट इन 1770 a terrible famine was there in Bengal. फेमाइन क्या होता है? जब एक भूखमरी की स्थिति आ जाती है जहां पर लोग जो है भूख से मरने लग जाते हैं. दैट इज अ फेमाइन. सो दिस फेमाइन ऑफ 1770 it had killed 10 million people in Bengal, and 10 million people was around 1/3 of the population. बंगाल की अराउंड 1/3 पॉपुलेशन जो थी इस फेमाइन से मर गई. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो भी कम हो चुका था. लोगों के लिए को फीड करने के लिए सामान नहीं था. सो नाउ देयर वाज अ नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर. जब ये एक इतना बड़ा फेमाइन आया तो अब थोड़ा कंपनी को लगा कि नहीं, दे हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. सो अब उन्होंने क्या किया कि कोशिश की कि वो एग्रीकल्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव करें. कुछ कंपनी ऑफिशियल से उन्हें ये लगने लगा कि दैट द इन्वेस्टमेंट इन लैंड इज टू बी एनकरेज्ड, एग्रीकल्चर इज टू बी इम्प्रूव्ड. उन्होंने अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया. और ये जब उन्होंने सोचा तो उसका एक रिजल्ट क्या रहा? The policy of permanent settlement in 1793. कंपनी ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी जो थी वो इनिशिएट की. उसके अंडर क्या था कि जितने भी राजा थे, तालुकदार थे, वो ये छोटे छोटे गवर्नर्स होते थे, they were recognized as zamindars. अब इन्हें इनकी पोस्ट नहीं दे दी गई, that was zamindar. It means कि now these the company, it was not directly collecting the revenue from the people. उसने अपने मीडिएटर्स रख लिए. ये मीडिएटर्स कौन थे? लोकल राजा और तालुकदार से. और ये ऐसा क्यों रखा गया? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उनका खुद का इंप्रेशन तो खराब था, राइट. They wanted to control the local people. They had to collect the revenue from the local people. तो उन्होंने क्या किया? लोकल रूलर्स ही पकड़ लिए, जिनकी लोगों में अच्छी इमेज थी उनको पकड़ा, उनको जमींदार डिक्लेयर कर दिया और उन्हें कहा कि अब तुम रेवेन्यू कलेक्ट करोगे. They were asked to collect revenue from the peasants and pay revenue to the company. राइट. अब इन जमींदारों को कहा गया कि तुम पैसे लोगों से इकट्ठे करो, रेवेन्यू इकट्ठा करो और कंपनी को दो. ये परमानेंट होगा, ये आगे फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होगा. जो परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट के नाम से यू कैन से द थिंग विच विल नॉट बी चेंजिंग, इट इज परमानेंट इन नेचर. इससे कंपनी को ये लगा कि ओके, एक मंथली एक रेगुलर इनकम आती रहेगी. And even these zamindars, they will be at least investing something in the improvement of the agriculture, or at least they will be also thinking for the improvement of the agriculture. Now this revenue demand, as already they have mentioned कि ये जो revenue है permanent है, ये increase नहीं किया जाएगा. The zamindars would benefit from increased production from the land. तो जमींदार क्या करते थे कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा नहीं, वो बेनिफिट ये खुद ले जाते थे. That was a benefit for the zamindars, right? So ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये ठीक था कि ब्रिटिशर्स या कंपनी को थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा था, रेगुलर फ्लो था, बट इसमें ज्यादा फायदा किसका था? जमींदार. लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, परमानेंट सेटल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी. इट्स नॉट ओनली कि परमानेंट सेटलमेंट ही एक वे आउट था, इन्होंने और भी कई ऐसी पॉलिसीज थी जो स्टार्ट की थी. एनी हाउ, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? परमानेंट सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी को ये लगने लगा कि जो जमींदार हैं वो एग्रीकल्चर में ज्यादा ना तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, राइट. और
सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी कि जो रेट कंपनी ने फिक्स कर रखा था रेवेन्यू का वो बहुत ज्यादा था, दैट वाज वेरी हाई, और इतना हाई था कि कई जमींदार तो उनको मुश्किल होती थी कि हम लोगों से कलेक्ट कैसे करें, इतना तो वो कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो जो जमींदार उतना अमाउंट नहीं दे पाते थे, देयर जमींदारी वाज टेकन बैक बाय द कंपनी। तो कई जमींदार बेचारे ऐसे थे कि जिनको अपनी ही जमीनें बेचनी पड़ी ताकि वो जो कंपनी है उनको थोड़ा बहुत रेवेन्यू दे सके, राइट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही थी उस समय इस परमानेंट सेटलमेंट की। अब व्हाट हैपेंड कि धीरे धीरे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बढ़ता गया, it had expanded, it had increased. It means increase in the income of zamindars but no increase in the income of company. क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो उसको फिक्स कर दिया था, राइट। कंपनी ने तो पर जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो फिक्स कर रखा था। तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो उसका बेनिफिट किसको हुआ? जमींदार्स को। Whereas that was not of any benefit to the company. तो अब कंपनी को लगा कि परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम है ये बहुत बढ़िया नहीं है, तो लेट्स चेंज द सिस्टम, राइट। यहां भी अभी इन्हें कंपनी को बहुत ज्यादा शौक नहीं था कि हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर ले, बट देयर मेन पर्पस वाज टू गेट मोर एंड मोर रेवेन्यू. So now they wanted कि something should be there which is not fixed, which they can change as per the increase in the production, right? So इन problems के कारण Britishers ने दोबारा थोड़ा सोचा कि what can be done to increase the revenue. So to overcome the problems of the permanent settlement, a new type of system was devised. And this system was devised in 1822 by an Englishman known as Holt Mackenzie. हॉल्ट मैकेंजी जो था, जिसने आज का जो उत्तर प्रदेश है, जो पहले बंगाल का पार्ट होता था, वहां पर उसने एक सिस्टम नया शुरू किया हॉल्ट मैकेंजी ने, दैट वाज नोन एज महलवारी. महलवारी क्या था? एवरी विलेज, उस समय विलेज जो थे, विलेज को कहा गया महल. विलेज वर नोन एज महल, राइट. ही बिलीव्ड कि जो विलेजेस हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, दैट आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट. तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले जितने भी छोटे विलेजेस थे उनमें जितनी लैंड थी ना, उस लैंड को मेजर करवाया, राइट. लैंड को मेजर किया, वहां पे क्या सिस्टम चल रहा है रेवेन्यू कलेक्शन का उसको स्टडी किया, and eliminated revenue of each plot within a village. It was added to calculate the revenue that village had to pay. उसने अब क्या किया कि इंडिविजुअल लोगों से कलेक्ट करने की बजाय द एंटायर विलेज had to pay the tax. Means one village as a whole will pay the tax. वो कैसे कैलकुलेट किया गया कि जब सारा रिकॉर्ड देखा गया, कितनी जमीन है, कितना यहाँ से टैक्स लिया जा सकता है, हर फैमिली कितना दे सकती है, हर फैमिली को मल्टीप्लाई किया गया, एंड उसके बाद एक अमाउंट दिया गया कि दिस विलेज विल पे दिस मच अमाउंट, एंड दिस अमाउंट विल बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली. ये परमानेंट नहीं होगा.
ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये रेवेन्यू बढ़ जाएगा, अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो ये कम भी हो जाएगा। आई मीन इट वाज नॉट अ फिक्स्ड वन, इट वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली। एंड हु वाज इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू? कलेक्ट कौन करेगा? विलेज को दे देगा, कलेक्ट कौन करेगा? नाउ इन प्लेस ऑफ जमींदार द विलेज हेडमैन, जो विलेज का मुखिया होगा, वो अपने गांव से वो टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और कंपनी को देगा। सो दिस वाज नोन एज द महलवारी सिस्टम। नाउ डिफरेंस क्या था परमानेंट और महलवारी में? परमानेंट में रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, इन महलवारी द रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड, इट वाज रिवाइज्ड पीरियोडिकली, राइट? And many other differences are also there, जहाँ पर कि in the permanent settlement the zamindars were collecting the revenue, whereas here in Nalwari the village headman was collecting it, right? So ये basic difference तो ये था कि दोनों में एक फिक्स था और एक फिक्स नहीं था, periodically इसमें changes आते थे, right? One more system which was initiated by the British, that was the Monroe system. हमने इन किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है, right? This is the Monroe system, which was also called the Rayatwar or Rayatwari system. It was developed by Thomas Monroe, right? अब नॉर्थ में था द महलवारी सिस्टम, साउथ ऑफ इंडिया के लिए नया सिस्टम चलाया गया, दैट वाज अ रैयतवारी सिस्टम. It was tried on a small scale in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan. और ये जब टीपू सुल्तान के साथ वॉर हुई और ब्रिटिशर्स में जीत के, इसके बाद ये सिस्टम जो था वहां पर शुरू किया गया. एंड एज मेंशन इट वाज डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो एंड इट वाज एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया. ये क्या था सिस्टम? दैट द कल्टीवेटर्स जो किसान हैं, जिन्हें कहा गया रैयत, रियात से इसमें लिखा है, हम हिंदी में इसको कहते हैं रैयतवाड़ी, राइट? रैयतवार जो है इसको हम हिंदी में रैयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं. सो ये माना गया कि जो कल्टीवेटर्स है, खेती तो वही करते हैं और जनरेशन से करते आ रहे हैं, एंड नो वन एल्स कैन बेटर इन्वेस्ट इन द लैंड अदर देन द क्रियोप्स और द कल्टीवेटर्स. किसान से ज्यादा उसकी जमीन के बारे में और कौन सोच सकता है, राइट? सो दे बिलीव कि ये जो रैयत है या जो विलेजेस हैं, इन्हीं से डायरेक्टली इनसे पेमेंट जो है वो ली जाए, राइट? कि डायरेक्टली ये जो विलेज जो किसान है ये ही अपना टैक्स देंगे और डायरेक्टली ऑफिसर्स को देंगे. अब बीच में से विलेज हेडमैन भी नहीं रहेगा, बीच में जमींदार भी नहीं रहेंगे, डायरेक्टली the villager, the cultivator and the company, मिडलमैन हटा ही दिए, राइट? लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत रही कि जो ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स किसके थे? ब्रिटिशर्स से थे, राइट? उन्होंने बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू रख दिया, प्लस करप्ट बड़े थे. उनका मेन पर्पस था कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लें, right? So it had led to lot of corruption also, right? Anyhow, अब इससे नुकसान क्या हुआ कि अब किसान जो थे, they were unable to pay, they fled the countryside. उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी जहां पर रहते थे. villages became deserted. कई एरियाज ऐसे थे जहां पर गांव के गांव खाली हो गए. Why? Because they were unable to pay these revenue. उन्हें ये लगा, जो ब्रिटिशर्स थे या कंपनी वाले थे या ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, उन्हें तो ये लगा कि ये नया सिस्टम जो है ये बहुत बढ़िया है,
and that will transform the peasants into the rich farmers. कि हम पीजन से टैक्स लेते रहेंगे, पीजन उस टैक्स को पे करने के लिए और मेहनत करेंगे, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, दे विल बिकम रिच. लेकिन इनिशियली ही इतना ज्यादा हाई डिमांड कर दी थी इन्होंने कि द पीपल और द कल्टिवेटर्स दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कल्टिवेट. Right? So in your tomorrow's class, we will cover that how the Britishers now they had started growing or compelling the Indian farmers to grow for their country or grow for Europe.